हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चला है इसके कारण बहुत सारे एग्ज़ाम के डेट पोस्टपोन हो गए हैं। तो आप लोग उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और यू कैन स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स in the upcoming exam. So let us see. In this session, we'll discuss types of credit facilities. So mostly banks are giving for credit facility to its borrower. The main function of the bank is to accept deposit from पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी दौरान यही मनी को अपनी बोरोर्स और जो बैंक से मनी बोरो करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उसे उस पैसा को देते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट गेन करते हैं वो उसमें से कुछ पैसा वो डिपॉजिटर को आज इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और बाकी पैसा वो अपने पास रखते हैं एज ए प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम। वहाँ से वो बैंक का इनकम जनरेट करते हैं। तो दिस इज़ द वे banks are mostly utilized for giving credit facilities. The borrower get different types of credit facilities. So in this lesson we'll discuss about different types of credit facilities that is given by the banks. So what are the different types of credit facilities that are given by bank are cash credit, overdraft, purchase and discounting bill, demand loan, term loan. These are different. The credit facility can be fund based or non-fund based. In fund based, mostly directly there is involvement of fund by the bank. But in non-fund based, there is no direct involvement of fund. Banks only give guarantee for पेमेंट. देर इज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट. बैंक का कोई भी डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व नहीं होता है. बैंक सिर्फ एक गारंटी के दौरान काम करता है. वो पेमेंट के लिए गारंटी देता है. तो दैट विल डिस्कस इन लैटर. सो लेट अस स्टार्ट. First, we'll discuss about cash credit facilities. Cash credit is the most preferred form of lending in India. Mostly the businessmen, for their working capital requirement, for purchase of raw material, they are mostly taking cash credit loan. Cash credit are the business loan. In this cash credit, a limit is set. And the borrower can able to withdraw up to that limit. Suppose 1 crore limit is set and the borrower can utilize up to 1 crore limit. And when there is flexibility in that credit system. द फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इफ़ बोरोवर को 10 लाख रुपए चाहिए तो वो 10 लाख ही विड्रॉ कर सकता है. बाकी के अमाउंट वो भर के रखता है. तो जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करता है उसी के ऊपर भी उसको ब्याज देना पड़ता है. इंटरेस्ट उसी के ऊपर चार्ज होता है जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता है. बाकी के अमाउंट के ऊपर उसको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है. एंड इट इज़ द मोस्टली जो जितने भी बिजनेस फार्म से वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो कैश क्रेडिट लोन लेते हैं. इसको कैश क्रेडिट अकाउंट को वो एज ए करेंट अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं. वो जब चाहे पैसा डिपॉजिट करके उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं. बट अप टू द लिमिट. जब जितना लिमिट बैंक को दिया जाता है, बैंक ने उनको दिया है, उसी लिमिट के अंदर ही वो डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं. वो अकाउंट को ओवरड्रॉ नहीं कर सकते. एंड द क्रेडिट का वो रिव्यू और रिन्यूअल ईयरली किया जाता है. ईयरली उनके अकाउंट का अप्रेजल किया जाता है अपनी परचेज सेल के फिगर के ऊपर. अपनी सेल्स के फिगर और प्रॉफिट के को देख के वो कैश क्रेडिट अकाउंट का रिव्यू एंड रिन्यू किया जाता है एवरी मंथ, इन एवरी ईयर.
then standby line of credit. Standby line of credit is given by the bank when there is a sudden increase in sale of cash credit borrower. There is, if there is sudden increase in sale in the account, then in that case they have to give up to 15% of their existing limit. The extra loan can be given to them for meeting their day-to-day requirement or their requirement for raw material, or when there is sudden increase in sale. In that case some standby limit is given, and it is up to 15%, and as per banks different banks rule is different for giving the standby limit. And it is very much operative convenience, because for the whole amount if for whole amount they do not have to give interest, they are how much amount they have drawn from the bank. If 1 करोड़ से वो 10 लाख ही निकालता है तो उनको 10 लाख ही ब्याज देना पड़ता है. So there is operative convenience, and bankers are unable to verify the end user fund, because वो अपने टाइट शेड्यूल के दौरान और टाइट पीरियड जबकि वो फंड के डेफिसिट होता है उस टाइम में वो फंड को अनप्रोडक्टिव यूज बिजनेस के अलावा बाकी कोई चीज़ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं. सो देयर इज इनएबिलिटी टू वेरीफाई एंड यूजर फंड. एंड यूज कहाँ पे हुआ, कहाँ पे वो अपना फंड को इन्वेस्ट किए, उतना वो वेरिफिकेशन नहीं होता है. बट एक्चुअली द प्रॉफिट और सेल्स के फिगर और उनके डिपॉजिट और विड्रॉल के हिसाब से उनका अप्रेजल किया जा सकता है. वेदर दे हैव यूज्ड इट प्रोडक्टिवली और अनप्रोडक्टिवली, उनका सेल्स का फिगर बता देता है. एंड दर स्टॉक्स के रिकॉर्ड उनको बैंक को देना पड़ता है. हर महीने दे हैव टू गिव स्टॉक स्टेटमेंट्स to banks which shows the existing level of stocks, their new sales, their inventory level. द कैश क्रेडिट लोन को हम सिक्योर कर सकते हैं कोई भी मॉर्गेज के थ्रू और कोई सिक्योरिटी के थ्रू इसको सिक्योर कर सकते हैं. Then next comes to overdraft facility. Overdraft facility also be given for business purpose. It is also given for the business purpose. Mostly for cash credit a separate account is opened, but a overdraft facility can be no separate account opened for overdraft, giving overdraft facility. It can given on saving account. Overdraft facility can be given just like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana OD facility, PMJDY OD. We can give them OD facility to the Jan Dhan account holder where there is satisfactory transaction over last 6 months. They can able to get overdraft facility in Jan Dhan Khata. Also, so in that case, over the saving account, their existing saving account, they are getting overdraft facility. And also over current account, banker can give overdraft facility when there is satisfactory transaction in the current account or saving account. Then the overdraft facility can be given, and they can able to draw more than their the amount of balance in their account. So that is called overdraft facility. They can able to overdraw their account through credit. एक आदमी के पास 10,000 है और बैंक ने उसे 2,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया, तो वो अपने अकाउंट को 12,000 तक ही ड्रॉ कर सकता है, और बाकी जो 2,000 के ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. 10,000 तो वो अपना ही था और 2,000 वो बैंक से एज ए ओवरड्राफ्ट लिया है, तो 2,000 के ऊपर उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा.
the overdraft facility can be given for short period और also can be long period. अब long period के लिए दे सकते हैं और temporary के लिए दे सकते हैं और short period के दे सकते हैं. और overdraft को हम सिक्योर भी कर सकते हैं कोई भी collateral security के थ्रू और कोई भी शेयर डिवेंचर और सिक्योर्ड एसेट और फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू ओवरड्राफ्ट को हम सिक्योर भी कर सकते हैं बैंक में. And there is always to document it given while giving overdraft facility, which is most important. One is written application from the customer to for giving overdraft facility and promissory note to be signed by the customer. There must be signed promissory note by the customer while giving overdraft facility, and written application should be collected from the customer while giving overdraft facility. There is a case against Bank of Maharashtra where the account holder ने कोई भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस नहीं किया था फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सो अब बैंक ने उसे उनके ट्रांजैक्शन के ऊपर ओवरड्राफ्ट दे दिया था. तो अब जो वो बैंक में चेक लगाए तो उनका चेक ऑनर हो गया, ड्यूली ऑनर्ड, बिकॉज देर इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड दे कैन ओवरड्रन द चेक, ओवरड्रन द अकाउंट. So in that case the amount overdrawn from above the balance becomes लोन फॉर दैट पर्सन. सो तभी एक केस हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन को. The High Court in that case concluded in 1985. High Court concluded that there should be implied agreement for overdraft. जब भी कोई कस्टमर को ओवरड्राफ्ट ग्रांट देते हैं आप उससे एक प्रॉमिसरी नोट ले लीजिए और एक आपका रिटर्न एप्लीकेशन ले लीजिए. देन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी सिक्योर्ड. इसको हम बिजनेस पर्पस के लिए ले सकते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं एज ए ओवरड्राफ्ट. और जितने भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे बस उसी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट कम टू टर्म लोन. आपका जो टर्म लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म लाइक क्रॉप लोन, देन क्रेडिट कार्ड लोन्स. आपका ये शॉर्ट टर्म लोन 3 मंथ से 1 ईयर अप टू 1 ईयर हो सकता है. आपका सीड्स इन क्रॉप लोन सीड फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं. एंड इसका आपको एक साथ पेमेंट आपको हार्वेस्टिंग सीजन में करना पड़ता है. एंड कोई भी डिमांड लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म लोन के अंदर आता है. और लॉन्ग टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन मोस्टली कोई भी फिक्स्ड एसेट और कोई मशीनरी हो, कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपको परचेज करना हो तो उसका आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं. और उसमें आपको EMI के थ्रू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI के थ्रू पेमेंट करना है. एंड उसमें आपको कुछ ब्याज लगेगा और उसको आपको मंथली भरना है. अभी रेपो रेट के हिसाब से आपका EMI का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. और देन द कम्स टू ब्रीज लोन. ब्रीज लोन क्या आता है, जब आपका कोई मिसमैच होता है क्रेडिट में, आपका कोई शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट होता है, आपका कोई अर्जेंट नीड होता है, एसेंशियल नीड होता है, इन दैट केस आप बैंक से ब्रीज लोन ले सकते हैं. टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए ब्रीज लोन ले सकते हैं.
Then comes to retail loan. Retail loan like vehicle loan, housing loan, education loan, buying of automobiles, different kinds of loan कि मोस्टली EMI में रिपेमेंट करना पड़ता है, और इसका आपको 3 ईयर्स से 30 ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा रिटेल लोन, और मोस्टली ये इंडिविजुअल को दिया जाता है. And in case you are granting finance to HUA, farms and company, in that case आपको उसके अच्छे से उसका restriction को जानना है, कैसे लोन को देना है, and that's much. एंड नेक्स्ट कम टू कंपोजिट लोन. कंपोजिट लोन में आप बोथ वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों ही सैंक्शन कर सकते हैं. मतलब आप टर्म लोन सैंक्शन कर रहे हैं, उसका फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी बिजनेस का लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी परचेज करना हो, उसके कोई फिक्स्ड एसेट जनरेट करना हो, तो उन केस में आप उसको टर्म लोन दे सकते हैं. और उसका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एक वर्किंग कैपिटल ले, कोई सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं. दोनों एक साथ फाइनेंस कर सकते हैं एक ही बैंक से, वो सम वर्किंग कैपिटल लिमिट और टर्म लोन लिमिट ले सकते हैं. तो while sanctioning composite loan, mostly it is sanctioned to micro and small enterprise, where they have to purchase the fixed asset, they have to generate fixed asset also, and they have to meet their working capital requirement also. So कोई नया फार्म जब शुरू में उसको लोन दिया जाता है, उसको बहुत, जैसे कि आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन जो PMEGP आता है, उसमें दो ही न्यू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को जब भी लोन दिया जाता है, उसमें दो ही लिमिट फैसिलिटी एक साथ दे देते हैं, फॉर बोथ फॉर जनरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑल्सो फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल लिमिट. एंड द रिपेमेंट ऑफ दिस रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ द टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लिमिट मस्ट बी फिक्स्ड एंड सच वे दैट जब भी उसका क्या अच्छे से कैश फ्लो आ जाए, तो उसमें रिपेमेंट उसमें सेट करना है आपको. एंड प्रॉपर अप्रेजल होना चाहिए कि कब भी उसका फंड फ्लो होगा, कब उसका अच्छे से इनकम जनरेट होगा, उसी हिसाब से आपको कंपोजिट लोन देना है. देन अभी ये जितना सब हम पढ़े वो सब फंड बेस्ड है. यहाँ पे फंड बैंक का फंड इन्वॉल्व है. एंड अभी दूसरे जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें बैंक का फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें सिर्फ बैंक का गारंटी इन्वॉल्व होता है, और थ्रू दिस गारंटी बैंक कैन जनरेट इनकम. तो इसमें भी रिस्क है, बोथ में, फंड बेस्ड में भी रिस्क है. फर्म का बैंकरप्ट होने का चांसेस रहता है, फर्म लॉस में जाने का चांसेस रहता है, और नॉन फंड बेस्ड में भी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क रहता ही है. सो लेट अस कम्स टू बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. So here we will discuss about purchase and discounting of bill, कैसे बैंक डिस्काउंटिंग करता है, कैसे बिल परचेज करता है. So here there is a buyer. There is a buyer. ये बायर ए है, उसको कुछ सामान का ज़रूरत है. वो बायर है, उसने सेलर से सामान मंगाया, सेलर बी है. तो यहाँ पे सेलर ने बायर को सामान दिया, सेलर ने बायर को गुड्स दिया, बट बायर के पास उसको देने के लिए पैसा नहीं था. तो उसने बोला कि आप मुझे गुड्स दे दीजिए, मैं आपको 90 डेज के बाद मैं आपको आपका पैसा लौटा दूँगी. तो बायर ने बोला ठीक है, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज आप साइन कर दीजिए. तो बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया.
बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कर दिया। तब वो सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिया और वो अभी सेलर ने तो सामान दे दिया, उसे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसे अपना डे टू डे एक्सपेंसेस भी करना है। वो अभी कहाँ से पैसा लाएगा? उसने तो सामान बेच दिया, अभी उसे नया सामान भी बनाना है, नया ऑर्डर भी रखना है, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करना है, तो वो अभी कहाँ से पैसा लाएगा? तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो वो बायर ने एक्सेप्ट किया था, जहाँ पे सेलर हुआ क्रेडिटर, उसने क्रेडिट पे सामान दिया, और बायर हुआ डेटर, जिसने डेब्ट पे सामान लिया। और यहाँ पे सेलर ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास गया, तो बैंक ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, और सेलर ने बैंक को बोला कि आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रखिए और मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज 10 लाख का है, आप मुझे पैसा दे दीजिए और आप 90 डेज़ के बाद जाके बायर से ले आना। तो अभी क्या होगा ना, बैंक ने अभी पूरा अमाउंट तो 10 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो 10 लाख रुपए बी को नहीं देता है। वो क्या करता है, उसमें अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। बैंक ने क्या किया, अगर वो 90 डेज़ के लिए लेता है तो 90 डेज़ मीन्स 3 मंथ्स, तो 3/12 और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया 10%, तो 0.10 इंटू 10 लाख 10,000, तो ये आ गया आपका 25,000। तो 25,000 में से वो 10 लाख से 25,000 माइनस करके 9,75,000 उसने बी सेलर को दे दिया बैंक ने। अब वो बाकी जो 25,000 है, ये बैंक का इनकम हो गया। तो बैंक ने बी को पेमेंट दे दिया, और अभी वो 90 डेज़ के बाद वो पैसा ए से कलेक्ट करेगा थ्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी ए का प्रॉब्लम सल्यूशन हो गया कि ए को बिना पेमेंट लेट में देना था, और उसको सामान का ज़रूरत था, वो पैसा उसे मिल गया। और बी को भी यहाँ पे फ़ायदा हुआ, वो सामान दिया और तुरंत पैसा भी मिल गया। और यहाँ बैंक अपना विदाउट फंड इन्वॉल्व किए उसे वो 90 डेज़ में उसको इंटरेस्ट भी मिल गया, 25,000 का मुनाफा उसको हो गया। और उसने गारंटी के बेसिस पर यहाँ पे फंड उसको मिल गया। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, and please kindly like and subscribe to my channel. Goodbye, stay home.